Good morning, student. I welcome you all to the fifth lecture of Unit 5 in Power Plant Engineering. The title of Unit 5 is Power Station Economics, and we have already seen and gone through various topics, and we have already discussed various topics on power station economics in our last 4 lectures. And today is the fifth lecture, and this one is the last lecture. And in today's lecture I will discuss about interconnected systems, load display centers, and the comparison between the various power plant. So let us start today's session. First of all, I will discuss what is interconnected system. So here the term interconnected applies to the area of energy can be defined as a system consisting of two or more individual power system normally operating with connecting tie lines. That means interconnected system means all the generating stations, all the transmission lines, substation and load are connected in interconnection. अगर कोई पावर प्लांट है, पावर प्लांट के अंदर जितने भी जनरेटिंग स्टेशन है, हो सकता है पावर प्लांट के, इफ़ आई हैव ए सिंगल पावर प्लांट, in a single power plant there can be 4 or 5 generating unit. There are 4 or 5 small thermal power plant inside a complete power plant. There will be a different transmission line for each power plant. There will be different substation, transformer and load. So these all are connected through a single or a connecting tie lines, which is called as interconnected, which is known as interconnected. And the system where all the power systems are controlled and are operated with the help of one single tie line, connecting line, is known as interconnected systems. Why interconnected system is necessary and why is it important in a power plant? For an example, if any one of the generation unit or transmission line get fail, or if there is some blackout or breakdown in some generating station or a transmission line, or there is a repair of some generation station or transmission line or a substation, then the load generation shift to another station can be done with the help of interconnected system. मान लो किसी एक जनरेशन स्टेशन में या एक ट्रांसमिशन लाइन में काम चल रहा हो, या ब्रेकडाउन आ गया हो, या कोई फॉल्ट के कारण वो बंद हो गया, तो हम जनरेशन जो हो रहा है पावर प्लांट में, उस जनरेशन को हम दूसरे ट्रांसमिशन लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो जनरेशन हो, यूनिट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, वो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना आए, कोई भी कंस्ट्रेंट ना आए, और वो हेल्दी कंडीशन में स्मूथली ऑपरेट होता रहे. तो इस कारण हमें इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का बहुत ज़रूरी है. इंटरकनेक्टेड सिस्टम मीन्स आपस में सब एक दूसरे से जुड़े हैं. If any of the system get fail, if any of the transmission line get fails, if any of the generation station get fails, if any of the load get disconnected, so they can be done or they can be overcome with the help of another connected system to smoothly run the power plant. Next, these are the advantages and the characteristics of interconnected system. First of all, enhanced reliability is assured for the most critical load in the system. If we have interconnected system in a power plant, then their reliability of a power plant get enhanced. Power backup remains available if any one of the unit gets failure. अगर कोई भी एक यूनिट फेल होता है तो मेरे पास पावर बैकअप अवेलेबल है. There can be a multiple unit configuration. बहुत सारे यूनिट एक साथ कन्फिगर रहते हैं, एक साथ सिंक रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी एक साथ हम कनेक्शन रखते हैं, तो पार्शियल लोड को हम एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं. अगर एक जनरेटर ऑफलाइन में है तो हम दूसरे जनरेटर से उसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम इलेक्ट्रिक ग्रिड या इलेक्ट्रिक सप्लाई में हम भेज सकते हैं. It provides the flexibility to a whole power plant. For example, if I have 2, 3 or 4, 5 generating sets of the same or different kilo output,
सबका रिक्वायरमेंट और सबका लोड अलग अलग है, तो हम सभी के लोड को प्रिसाइसली मैच करके और जितना ही मेरा ओवरऑल प्रोडक्शन है उस ओवरऑल प्रोडक्शन को भी मैं अचीव कर सकता हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम। ग्रेटर पावर अवेलेबिलिटी, मेरे पास पावर अवेलेबिलिटी बहुत देर तक के लिए रहता है, क्योंकि अगर कोई भी एक यूनिट अगर फेल होता है तो मैं दूसरे यूनिट जो कि मेरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम से कनेक्टेड है, मैं उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू रख सकता हूँ। तो मेरे पास पावर अवेलेबिलिटी होता है, मेरे पास बैकअप होता है। तो अब ये सब बैकअप की कब जरूरत है? जब मेरे पास रिपेयर है या मेंटेनेंस चल रहा हो पावर प्लांट में, तो पावर अवेलेबिलिटी के थ्रू जो पावर अवेलेबल है, जो बैकअप है, उस बैकअप के थ्रू भी मैं उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकता हूँ। And one of the most major advantages is it can be get maintained or serviced by a diesel technician। जैसे कि बड़े बड़े पावर प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे हमें स्पेशलाइज्ड और बहुत ही कॉस्टली सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। अगर सिंपल किसी एक जनरेटिंग यूनिट का अगर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर कनेक्शन सिस्टम है, तो उस कनेक्शन सिस्टम को जानना पहचानना एक पर्टिकुलरली एक अलग ही उसमें मुझे रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें मुझे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो क्या है कि यूनिवर्सल कनेक्टेड सिस्टम है, जो कि हर जगह पे कॉमनली और जनरली फॉलो होता है। वैसे ही इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जो भी पीएलसी या कंट्रोलर यूज़ करते हैं हम वही जनरल वाला यूज़ करते हैं। तो इसमें कोई हाईली स्केल्ड और कॉस्टली सर्विस की ज़रूरत नहीं रहती है। जो अनस्किल्ड या कम स्किल्ड या लोअर स्किल्ड ट्रेनी इंजीनियर होते हैं या जो डीजल टेक्नीशियन होते हैं, वो भी इसको आसानी से हम इसका सर्विसिंग कर सकते हैं। दिस आर द advantages of interconnected system. First advantages is the use of older power plant. In a power or use of older power plant, how it is advantageous in a power plant. For example, in the power system network, if there are some old and insufficient generating station, the station have the capacity to carry short period of load, but these generation system are not sufficient to run on a continuous basis. If it is connected through a modern power plant or a power plant which has a high load or which can satisfy a peak load, so these both can be interconnected so that the older power plant can also fulfill the electricity supply demand of a consumer. अगर मेरे पास अगर कोई ओल्ड पावर प्लांट है जो कि मेरे पास इनसफिशिएंट जनरेशन कर रहा है, जो कि सप्लाई फुलफिल नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक मॉडर्न पावर प्लांट है, न्यूली डेवलप्ड पावर प्लांट है, जिसके जो मैक्सिमम डिमांड और मेरा जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है, तो मैं ओल्ड पावर प्लांट को न्यू पावर प्लांट के साथ इंटरकनेक्ट करके मैं ओल्ड पावर प्लांट से भी अपनी सप्लाई को फुलफिल करा सकता हूँ। सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल ऑपरेशन. We know that all the generating station are working on the same frequency and the same voltage level. सभी generating unit या generating station जो होते हैं उनका frequency same रहता है और same voltage पे वो दोनों काम करता है. Besides, sharing of load among the power plant are done in such a way that all generating station continuously generate the electricity with higher efficiency and with high power factor. We know that जितने भी जनरेशन स्टेशन है सभी का फ्रीक्वेंसी जो रहता है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में वो सेम रहता है और सभी का वोल्टेज भी सेम रहता है. तो सभी को आपस में लोड और वोल्टेज शेयर करने से बेहतर है कि वो डायरेक्टली जितना भी जनरेशन कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में ही पेनिट्रेट करे, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में ही सप्लाई करे. तो इसके कारण क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, पावर फैक्टर हाई हो जाएगा, प्लांट लोड फैक्टर हाई हो जाएगा और हाई एफिशिएंसी से और मेरा पावर प्लांट वर्क करेगा. तो जब हाई एफिशिएंसी से मेरा पावर प्लांट वर्क करेगा, दैट मीन्स इट विल गिव अ इकोनॉमिकली बेनिफिट रहेगा और वो इकोनॉमिकली ऑपरेट करेगा, मतलब जितने से कम रिसोर्सेस में मेरा वो ऑपरेट करेगा. थर्ड वन इज द इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई. रिलायबिलिटी मतलब डिपेंडेंसी कम करता है. इन द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम all the load has more than one supply. If one supply failed or get disturbed or get breakdown or are under maintenance, then with the help of interconnected system and with the help of another load connected through the previous load, we can have a supply from the another source. उसका मतलब अगर मेरे पास दो जनरेशन यूनिट है, अगर मेरे पावर प्लांट में अगर एक जनरेशन यूनिट ब्रेक डाउन हो गया या मेंटेनेंस में चला गया या कुछ भी हो गया,
तो मैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम के द्वारा क्या कर सकता हूँ, दूसरा जो जनरेशन सिस्टम है उस जनरेशन सिस्टम से मैं अपने लोड को फुलफ़िल कर रहा हूँ, अपने डिमांड को फुलफ़िल कर रहा हूँ, और जितनी इलेक्ट्रिसिटी मेरे कंज्यूमर को ज़रूरत है मैं उतना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को मैं सप्लाई कर पा रहा हूँ। फोर्थ वन इज़ एक्सचेंज ऑफ पीक लोड। पीक लोड हमें जनरली वी ऑब्जर्व ए पीक लोड इन द समर सीजन. The use of all the high load equipment like air condition, refrigeration is get increased at the time of summer season. Therefore, the load curve of the power station shows a peak demand in the summer season. The peak demand is more than the capacity of that power system. पीक डिमांड वो डिमांड है जितना मेरे पावर सिस्टम की कैपेसिटी है उसके ऊपर के डिमांड जो भी मेरे सामने फॉल होता है उसको मैं कहता हूँ पीक डिमांड। तो गर्मी के मौसम में ऐसा होता है कि हमारा एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन का यूज़ और खपत उनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का खपत बहुत हाई हो जाता है। तो मेरा जो प्लांट का जो पीक डिमांड जो रहता है, पीक डिमांड कभी कभी क्या होता है पावर सिस्टम की कैपेसिटी से हाई हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या करता हूँ मैं, दूसरे पावर सिस्टम से मैं लोड शेयर करता हूँ। तो वो लोड शेयर तभी मैं शेयर कर पाऊँगा जब मेरे पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स रहेंगे, मतलब जब दोनों ही मेरा पावर जनरेशन सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड रहेगा। फॉर एग्जांपल ओल्ड पावर प्लांट अगर मेरा न्यू पावर प्लांट से अगर मेरा इंटरकनेक्टेड है तो गर्मी के मौसम में जब भी मेरे पास मेरा पीक डिमांड मेरे कैपेसिटी की हाई होगा तो मैं दोनों पावर प्लांट को अगर इंटरकनेक्टेड है तो दोनों पावर प्लांट से मैं लोड शेयर कर सकता हूँ। फिफ्थ वन इज इंक्रीज इन डाइवर्सिटी फैक्टर. We know that the diversity factor is the ratio of the sum of the individual maximum load of various plant to the maximum demand of the entire system. Sixth one is reduced plant reserve capacity. See, every power plant has a standby unit for emergency. In the interconnected system, all the plants are connected in parallel, so the reserve capacity of a system is reduced and it increases the efficiency of the system. Once again, I am repeating it. In every power plant, there is a standby unit or there is a reserve capacity for an emergency. In the interconnected system, all the plant are connected in parallel, so the reserve capacity of the system is reduced, and whenever it is required, it can get fulfilled by the use of another generation system with the help of interconnection system, and this can increase the efficiency of the power plant. The last advantages is reduced capital and the operating cost. So in interconnected system, the efficiency of plant is increased. We have seen that I have discussed how it get increases. So whenever the plant is interconnected system, it directly increases the efficiency of the plant and the cost of power generation is reduced. So in this system, the capital cost and by the help of interconnected system, the capital cost and the operating cost can be reduced, so that the unit cost of electricity can also be reduced and we can provide the electricity at a very cheaper rate. Now I will discuss some of the disadvantages of interconnected system. First one is expensive tie line. Second one is expensive circuit breaker. Third one is synchronizing problem. Last one is metering and instrumentation. See, first one is before discussing the disadvantages, some of the more disadvantages associated with interconnected system are at a time of implementation we don't get sync with the voltage control. there दोनों जनरेशन सिस्टम है मेरे पास, अगर उनको इंटरकनेक्ट कर दूँ तो उनके वोल्टेज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है ना। फिर उसके बाद उनके कम्युनिकेशन में फैसिलिटी सफिशिएंट मैं प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ द अवेलेबल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, वो बहुत ही कंजेस्टेड हो जाती है। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर पाते हम, मीटरिंग फ्रीक्वेंसी कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं एक्सपेंसिव टाई लाइन पे। फिर उसके बाद ये सब है मेरा सिंक्रोनाइजिंग प्रॉब्लम, क्योंकि वोल्टेज सिंक नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी सिंक नहीं होता है, मैं कम्युनिकेशन सिंक नहीं कर पाता हूँ बिकॉज
ये सब क्या होता है, जब मैं दो चीज़ों को इंटरकनेक्शन करता हूँ तो दोनों का एटमॉस्फेयर अलग है, दोनों का जनरेशन सिस्टम का वे ऑफ वर्किंग अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओल्डर पावर प्लांट में मेरा ओल्ड इक्विपमेंट रहेगा, वो सब की वर्किंग कंडीशन, वो सब की इक्विपमेंट के अंदर फंक्शनिंग अलग है। मॉडर्न पावर प्लांट में मेरे पास मॉडर्न चीज़ें रहेगी, तो दोनों को इंटरकनेक्ट करके एक पीएलसी, एक लोड कंट्रोल सेंटर पे लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि मुझे वोल्टेज कंट्रोल, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, फिर सिंक्रनाइजिंग की प्रॉब्लम है, फिर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करना, ये सब की प्रॉब्लम मैं फेस करता हूँ, है ना। एंड लास्ट वन इज हियर मीटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। सी मीटरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, जब मुझे ये सब चीज़ें वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें को मुझे अगर कंट्रोल करना हो तो इनके ऊपर मेरे को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेरियस नेटवर्क, सेंसर्स और मीटर्स और प्लेटफॉर्म मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पावर प्लांट के अंदर, कि जो क्या होता है, ये सभी मीटर्स, ये सभी सेंसर, ये सभी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, बहुत ही कॉस्टली होते हैं। तो ये इनडायरेक्टली एक तरह से मेरा कैपिटल कॉस्ट और टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ा देता है। लेकिन अगर ये एक बार अगर इंटरकनेक्ट हो जाए, मेरा पावर प्लांट या इंटरकनेक्शन सिस्टम आपस में एक बार सिंक हो जाए या वोल्टेज कंट्रोल हो जाए, तो इट प्रूव्स हाईली बेनिफिशियल फॉर एन एंटायर एजेंसी और फॉर एन एंटायर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस ए यूनिट, इट कैन प्रोड्यूस अ चीप इलेक्ट्रिसिटी which can be provided to the consumer. Next, these are the different types of elements of a load dispatch center. First one is the computer system for monitoring and recording, control decks for controlling, annotation panels, there are different panels to control and to operate every parameter, communication है, telemetry है, अदर इक्विपमेंट है, डीजल जनरेटर सेट है, हीट एंड वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, डीसी बैटरी रूम्स है, हार्मोनिक एसी सप्लाई है, यूपीएस है, बैटरी सिस्टम, ये सभी चीज़ें मेरे पास होने चाहिए जब मैं लोड डिस्पैच सेंटर की बात कर रहा हूँ। जब मेरे पास कोई लोड आ रहा है तो लोड कितना आ रहा है वो मैं कंप्यूटर सिस्टम में डेटा रिकॉर्ड करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। अगर लोड मेरे पास हाईली फ्रीक्वेंसी में आ रहा हूँ तो उसको कंट्रोल डेस्क के माध्यम से मैं कंट्रोल करूँगा, पैनल्स के थ्रू मैं उसको चेक करूँगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज़ की है, उसमें वोल्टेज कितना है, मुझे कहाँ पे कैसे सप्लाई करना है, ये सब पैनल्स के रहेगा। कम्युनिकेशन के थ्रू मैं उसमें ट्रांसमिशन और कैसे कम्युनिकेट करना है मुझे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कंज्यूमर तक, मैं उस चीज़ को स्टडी करता हूँ। फिर उसके बाद डीजल जनरेटर सेट में मेरे पास जनरेटर है, फिर हीट एंड वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग है, बैटरी रूम में मैं अपने बैटरी चार्ज करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता हूँ, हार्मोनिक फ्री एसी सप्लाई से मैं फिर अपनी जो एसी मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी आई है मैं उसे सप्लाई करूँगा। फिर यूपीएस में मेरा बैटरी कंडीशन डेवलप या attached. See, this is the comparison of some of the power plant, different power plant. We already know that there are various sources of power plant. One is steam power station, hydroelectric power station, diesel power plant and nuclear power plant. First of all, one of the various factor is the availability of the site. Station power plant are located where the water and coal is available and transport facilities are very good. Hydroelectric power plant are located where large reservoir can be constructed by large reservoir, that means dams can be constructed, for example in an hilly areas, and in such kind of hilly areas the transportation is very difficult. डीजल पावर प्लांट वहाँ पे हमारा स्थित रहता है जहाँ पे कम स्पेस और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, वहाँ पे मैं डीजल पावर प्लांट सेटअप कर सकता हूँ, है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट को मैं ऐसे जगह पे ऐसा साइट चुनता हूँ कि जो कि लोकली डेंस पॉपुलेशन से बहुत दूर हो, टू अवॉइड पॉल्यूशन एंड रेडिएशन। इनिशियल कॉस्ट की बात करूँ तो इनिशियल कॉस्ट इज़ लोअर दैन दोज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक या न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट का या स्टीम पावर प्लांट का इनिशियल कॉस्ट कम रहता है, किसके रेस्पेक्ट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। For an hydroelectric power plant, initial cost is very high because we have to construct a very heavier structure of dam and turbine. Diesel power plant में initial cost is very less as compared to other power plant, क्योंकि मुझे एक डीजल इंजन और डीजल की ज़रूरत होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत रहती है एट द टाइम ऑफ इनिशिएटिंग द पावर प्लांट, बिकॉज बिल्डिंग ए न्यूक्लियर रिएक्टर और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी मुझे स्ट्रक्चर डेवलप करना रहता है वो बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट उसमें लगता है। रनिंग कॉस्ट
स्टीम पावर प्लांट का रनिंग कॉस्ट बहुत ही हाई रहता है क्योंकि उसमें फ्यूल के लिए मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ कोल चाहिए रहता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में रनिंग कॉस्ट नील रहता है क्योंकि वाटर इज़ फ्रीली अवेलेबल। जहाँ पे नदी है, नदी पे हम बांध बना दे, बांध से मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता हूँ। डीजल पावर प्लांट में डीजल पावर हाइएस्ट अमंग ऑल द प्लांट बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ डीजल। डीजल पावर प्लांट का जो रनिंग कॉस्ट है बहुत हाई रहता है क्योंकि उसका फ्यूल जो है वो डीजल रहता है और डीजल बहुत ही हाई है ना। न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक्सेप्ट द हाइड्रो पावर प्लांट इट हैज़ मिनिमम रनिंग कॉस्ट बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल कैन बी प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ पावर। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या है कि ये स्टीम पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट से सस्ता होता है और इसमें ये इसलिए सस्ता है क्योंकि इसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल में मैं बहुत ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। क्योंकि ये मेरा क्या रहता है, इसमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें फ्यूजन रिएक्शन के कारण मैं चेन रिएक्शन के कारण कम एनर्जी को मैं ज़्यादा एनर्जी का पावर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। लिमिट ऑफ सोर्स ऑफ पावर, कोल मेरा बहुत ही लिमिटेड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर ये डिपेंडेबल है रेनफॉल पे। डीजल पावर प्लांट ये भी बहुत ही मेरा लिमिटेड रिजर्व है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो सोर्सेज चाहिए मुझे पावर प्रोड्यूस करने के लिए ये मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसमिशन, स्टीम पावर प्लांट के केस में मैक्सिमम है बिकॉज कोल इज़ ट्रांसपोर्टेड। कोल को मुझे एक रिसोर्स से अपने साइट तक पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में नील होता है क्योंकि जो इसका फ्यूल है पानी है और मैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वहाँ पे बनाता हूँ जहाँ पे नदी हो, तो मेरा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रियली नील होता है। डीजल पावर प्लांट में हायर देन हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है लेकिन थर्मल पावर प्लांट से कम है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट मिनिमम बिकॉज ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। न्यूक्लियर पावर प्लांट का एक मेजर एडवांटेज है कि इसका फ्यूल जो है बहुत ही कम फ्यूल की ज़रूरत है और कम फ्यूल में बहुत ही हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लीननेस एंड सिंप्लिसिटी, स्टीम पावर प्लांट इज़ वेरी पॉल्यूटेड क्योंकि इसमें कोल बर्न होता है तो और वेरियस टाइप्स ऑफ एमिशन देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है मेरा मोस्ट सिंपल है और क्लीन है। स्टीम और डीजल पावर प्लांट है ये स्टीम के रेस्पेक्ट में क्लीन है लेकिन न्यूक्लियर और स्टीम के रेस्पेक्ट में और न्यूक्लियर पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में क्लीन है लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के रेस्पेक्ट में ये पॉल्यूटेड है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में लेस क्लीन है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे डीजल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इसमें भी रेडियो एक्टिव जो मटेरियल या रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं और ऐसे बहुत से गार्बेजेस निकलते हैं कि जो कि लैंड की फर्टिलिटी और एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक होते हैं। ओवरऑल एफिशिएंसी, स्टीम पावर प्लांट का ओवरऑल एफिशिएंसी लेस देन ओवरऑल एफिशिएंसी इज अबाउट 25%, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का 85%, डीजल का 35% और वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। स्टार्टिंग थर्मल प्लांट को बनाने में बहुत टाइम लगता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को मतलब कैन बी इनिशिएटेड वेरी इंस्टेंटली, मतलब बांध बना दिया जाए, छोटा सा टरबाइन इरेक्ट कर दिया जाए तो ये आसानी से हम पावर प्रोड्यूस कर सकता है। डीजल पावर प्लांट को बस हमें डीजल इंजन खरीदना है, पेट्रोल खरीदना है और बहुत ही क्विकली स्टार्ट किया जा सकता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत ही आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है। स्पेस रिक्वायर्ड, थर्मल पावर प्लांट को बहुत ही ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है बिकॉज ऑफ बॉयलर और बॉयलर्स माउंटिंग और एसेसरीज़ को प्लेस करने के लिए। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी बहुत ज़्यादा ही जगह की ज़रूरत है क्योंकि उनका रिजर्वायर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एरिया रहता है। डीजल इंजन पावर प्लांट बहुत ही कम स्पेस लेता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट दिस रिक्वायर मिनिमम स्पेस कंपेयर टू एनी अदर पावर प्लांट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटी। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी बहुत ही मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट, थर्मल पावर प्लांट में हाई स्किल्ड लेबर और ऑपरेटिंग स्टाफ की ज़रूरत है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में जो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट है क्वाइट लो है, डीजल पावर प्लांट में और लेस है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में वेरी हाई क्योंकि हाईली ट्रेंड ऑफिशियल्स और हाईली ट्रेंड स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है इसके मेंटेनेंस के लिए। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस्ट क्वाइट लो थर्मल पावर प्लांट के लिए क्योंकि जो भी लोड सेंटर होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होते हैं वो पास में ही होते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत हाई होते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस क्योंकि हमें पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बहुत ही ज़्यादा पावर मेरा लॉस हो जाता है। डीजल इंजन पावर प्लांट में बहुत ही लीस्ट होता है क्योंकि जहाँ पे मैं डीजल इंजन या डीजल लेके जाऊँ वहीं पे मैं इसको जनरेट कर सकता हूँ पावर।
और न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बहुत ही लो होता है, क्योंकि इसका जो लोड सेंटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड जो होता है, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे मैं स्टेबल कर रहा हूँ या जहाँ पे मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ या जहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वहीं पर लोकेट किया जाता है। स्टैंड बाई लॉस, मैक्सिमम ऑफ द बॉयलर रिमेन इन ऑपरेशन फ्रिक्वेंटली। बॉयलर को बहुत बार मेंटेनेंस और ऑपरेशन की ज़रूरत रहता है, तो इसलिए स्टैंड बाई लॉस स्टीम पावर स्टेशन में बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसा कोई स्टैंड बाई लॉस नहीं होता है। डीजल पावर प्लांट में लेस होता है, क्योंकि डीजल इंजन का मेंटेनेंस बहुत ही आसानी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी बहुत ही लेस होता है, क्योंकि एक बार अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गया तो कंटिन्यूसली वर्क करता है, कंटिन्यूसली रन करता है। सो वी आर एंडिंग अवर यूनिट 5. If you have any doubt, you can write to me at my mail, or we can discuss it in our discussion session. Till then, I hope you will see all the videos of unit 5, and we will be discussing each and every topic in our discussion session. Thank you so much. Stay happy, stay safe, stay positive.